Question number 6 we are doing. In the figure, quadrilateral PQRS and EPCR, they are the parallelogram it is given. So angle P is given 110 degree. We have to find the measure of all the angles of ABCR. That means we have to find all these angles. Okay, all these angles we have to find out. Okay, now see here carefully all of you. As you can see, quadrilateral PQRS is a parallelogram, as you are aware because it is given in the question only. Good morning, Sanket. Quadrilateral PQRS is a parallelogram. So whenever the angles parallelogram, opposite angles are congruent, yes or no? So we can say that SPQ and this SRQ, they are congruent, yes or no? Because they are opposite angles now. So they both are what? Congruent. Next step. So SPQ is 110 degree. It is given. So what will be SRQ? SRQ is also 110 degree. Yes or no? What I want to say is this triangle is parallelogram. So this angle and this angle will be congruent. And this angle is already given 110 degree. So this angle SRQ will always be a 110 degree. So I have written 110 degree. Okay. Now next step. See here carefully. It is very important. See here. In place of SRQ, I can say ARC. The angle will remain same only now. Yes or no? In place of SRQ, this entire big angle, we can say ARC. So the angle will remain same. So we have got the value of ARC. This is what? 110 degree. 110 degree. Okay. Now you can see here. It is also parallelogram ABCR. देखो यहाँ पर ABCR भी क्या है? Parallelogram है. ABCR में भी opposite angles कैसे रहेंगे? It is congruent. So if this angle, see here, if this angle is 110 degree, so what will be this angle? It will also be 110 degree. Yes or no? If this angle is 110 degree, this angle is also 110 degree. So I can write down, see here all of you, angle ABC and angle ARC, they are congruent. Reason, opposite angles are parallelogram. Okay. So already we have found out ARC is what? ARC आएगा हमारा 110 degree. So what will be ABC? देखो यहाँ पर ABC is also 110 degree. देखो सब सेम ही है, एक एक करके 110 degree आने वाला है. इधर आओ. We know that this angle ABC and triangle BAR, they are the adjacent angle of parallelogram. Yes or no? मैंने जो mark किया है, that is adjacent angle. Yes or no? So if adjacent angle will be there, their addition is what? Their addition is what? Their addition is 180 degree. So here what it is taken? ABC plus BAR equals to what? It is 180 degree. So put the value. ABC is 110. ABC is 110 plus angle BAR as it is equals to 180. Now what will be the BAR? BAR equals to, obviously आप minus करोगे इसको, देखो यहाँ पे angle BAR equals to 180 minus 110. So 180 minus 110 is how much? It is 70 degree. So finally you got the answer. Angle BAR is what? It is 70 degree. Yes or no? Now tell me guys, अगर मेरा BAR, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये मेरा BAR 70 है, तो what will be this? What will be this? Obviously 70, right? So I will write here, BCR equals to BAR. BCR equals to what? It is BAR. BCR equals to what? It is BAR. What is BCR equals to BAR? They are congruent because opposite sides are congruent. Yes or no, students? So if BAR is 70 degree, now tell me the truth. What will be the BCR? Obviously, it will be a 70 degree. So final answer is BCR is 70 degree. We have found out finally all the angles. हमको यही निकालना था ना, हमको ये चारों एंगल निकालना था, हमने चारों एंगल निकाल दिए. So kindly take the screenshot guys first. Very simple sum, very basic sum. What to do now? See here all of you. In the figure, ABCD is a parallelogram as you can see, and E is on the ray AB. B equals to AB, it is already given. देखो B और AB दिया इक्वल है, B और AB इक्वल है दिया है, B और AB इक्वल दिया है हम लोगों ने. ठीक है, आगे बढ़ गए. We have to prove ED bisect BC at F. देखो ED, ये जो ED है ना, ED ये bisect कर रहा है किसको? किसको bisect कर रहा है? बोल रहे लोग BC को at point F. मतलब बेसिक मुझे ऐसा निकालना है, देखो BF इक्वल टू FC ये निकालना है हम लोगों को. प्रूफ क्या करना है समझ में आ गया? प्रूफ क्या करना है समझ में आ गया? BF इक्वल टू FC निकालना है हम लोगों को. ओके, ये हमको प्रूफ करना है.
इसके अकॉर्डिंगली अभी हम लोग वर्क करेंगे, ध्यान दो अच्छे से। व्हाट विल बी द स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप डायरेक्टली आई रिटर्न हियर। फर्स्ट स्टेप देख लो अभी, पहले कैसे आएगा, ध्यान दो स्क्रीन पर। फर्स्ट आई रिटर्न ए बी पैरेलल टू डीसी। ऑब्वियसली पैरेललोग्राम में तो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा ना, तो ए बी और पैरेलल टू डीसी हो गया। चलो इधर आओ, अगर ए बी पैरेलल टू डीसी है एंड नेक्स्ट क्या रहेगा, देखो ए बी को आई कैन राइट ए ई गाइस बिकॉज दे आर ऑन द सेम लाइन। देखो अच्छे से यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, आई हैव रिटन ए बी पैरेलल टू डीसी बिकॉज दिस इज ऑलरेडी गिवन। मैं बोल रहा हूँ ए बी को आई कैन राइट अक्खा ए ई ना, एक ही लाइन में आ रहा है ना, वो लोग लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। तो ए बी को मैं लिख रहा हूँ ए ई पैरेलल टू व्हाट, डीसी। AE parallel to what, DC. Now AE parallel to DC में I am taking as this BC is transverse, यानी BC को ट्रांसवर्सन दिया। देखो ऐसा डायग्राम बनेगा, देखो कभी ये AE है आपका और ये DC है आपका, ये B है समझो, ऐसा डायग्राम बनेगा अभी आपका, ध्यान दो अच्छे से समझो। तो व्हाट विल बी द एंगल्स गाइस? ऑब्वियसली आपको एंगल क्या मिलेगा अभी, एनीवन? हमको एंगल मिलेगा अल्टरनेट एंगल, मतलब EBC is equals to what, DCB, ये एंगल मिलेगा हम लोग को। EBC is equals to what, DCB, alternate angle you will get. So I will written here, देखो EBC is congruent to DCB, that means alternate angle. Now tell me guys, frankly tell me, EBC जो है, ये EBC जो है, इसके बीच में F आ रहा है, देखो F फिगर में देख लो F आ रहा है। तो EBC जो है इसको मैं EBF लिख सकता हूँ भाई, मैं EBF लिख सकता हूँ, एक ही लाइन में आ रहा है ना, EBF लिख सकता हूँ। तो मैंने देखो इधर EBF लिखा है किसी को। वैसे ही DCB को, दिस DCB को I can write DCF because angle will remain same ना guys, yes or no? So EBC को I have written EBF and DCB को I have written DCF. Guys ध्यान दो अच्छे से, मैं एक ही बार समझाऊंगा, यहाँ वहां देखना नहीं है किसी को भी, ध्यान दो, समझेगा अच्छे से अच्छे। इधर आओ, EBC को I have written EBF and DCB को I have written DCF। अब ध्यान दो, EBF and DCF, I have written equation number 1, मैंने निकल के इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। नाउ सी हियर ऑल ऑफ यू, ध्यान दो अच्छे से, दिस इज अ पैरेललोग्राम, यस और नो? ये आपका पैरेललोग्राम है। तो अगर पैरेललोग्राम होगा सो वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। सो द नेक्स्ट स्टेप वी हैव रिटन AB कॉन्ग्रुएंट टू B, ये जो AB है ना, AB ये कॉन्ग्रुएंट टू B। सबसे पहली बात तो ये क्या दिया है, हमको गिवन दिया है, यस और नो? AB और B जो है वो गिवन है ना, तो दो लाइन दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर दिया ए बी और बी के कॉन्ग्रुएंट है, यस। अभी एक बात समझो, ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है डीसी को, यस और नो? एग्री करते हो मेरी बात को? ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है डीसी को, रीजन विल बी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट एंड दे आर गिवन। उन लोग ने दिया है ए बी कॉन्ग्रुएंट टू बी। देखो ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डीसी जो है ये हमने निकाला पैरेललोग्राम की वजह से, और उन लोग ने दिया ए बी कॉन्ग्रुएंट टू बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को बताओ इससे क्या मिलेगा आपको, ए बी डीसी को भी कॉन्ग्रुएंट है, ए बी बी को भी कॉन्ग्रुएंट है। इन शॉर्ट मुझे मिलेगा बीई इज कॉन्ग्रुएंट टू डीसी। सिंपल है ना गाइस, ए बी डीसी को भी कॉन्ग्रुएंट है, ए बी बी को भी कॉन्ग्रुएंट है, तो डीसी और बी भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो फाइनली वी हैव रिटन बी कॉन्ग्रुएंट टू सी। इसको मैंने फोर्थ इक्वेशन दे दिया। अंडरस्टूड टिल हियर? कूल। दो मेन इक्वेशन है हमारे पास में, देखो ये एक है और ये एक है, ध्यान दो। अभी आई एम टेकिंग टू ट्रायंगल्स नाउ, ध्यान दो अच्छे से। आई एम टेकिंग टू ट्रायंगल्स, one is EBF, this triangle EBF, and another triangle is DCF, this triangle. These two small triangles we are taking, these two small triangles we are taking. Now tell me, हमको जो जो इक्वेशन मिला था ना 1 और 4 को वही लिख दो। 1 में क्या मिला था अपने को, 1 में क्या मिला था, EBF और DCF, ध्यान दो, EBF और DCF, EBF ये है और DCF ये है। एक एंगल कॉन्ग्रुएंट मिला तो एक एंगल लिख दिया मैंने, एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, नेक्स्ट वन क्या मिला था हम लोग को, साइड कॉन्ग्रुएंट मिला था ना अपने को। देखो बी कॉन्ग्रुएंट टू सीडी मिला था हम लोग को, बी कॉन्ग्रुएंट टू सीडी मिला था हम लोग को। तो एक साइड भी मिल गया हम लोग को, एक एंगल मिला, एक साइड मिला हम लोग को। नेक्स्ट वन और क्या मिल रहा है, हाँ नेक्स्ट वन देखो वर्टिकल ऑपोजिट मिल रहा है अपने को। देखो यहाँ पे ये तो वर्टिकल ऑपोजिट भी तो है भाई, नहीं मतलब हमको एक एंगल मिला और एक वर्टिकल ऑपोजिट मिला और एक साइड मिला। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय SAA टेस्ट, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय SAA टेस्ट। एग्री विथ मी? एग्री कर रहे हो मेरे से? सब चैट बॉक्स में बताओ फटाफट।
हमने क्या एंगल निकल और एक साइड निकाला गया सर, कुछ भी नहीं किया हम लोग ने। आपका ट्रायंगल खाली कंजेस्टेड है बोल के आपको दिखता रहेगा ऐसा, हम लोग ने सिर्फ एंगल और साइड निकाला, और लास्ट में हम लोग ने क्या बोला, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो एस ए ए। वाई नॉट ए एस से टेस्ट? ओके, देखो पहला साइड आ रहा है, देन एंगल आ रहा है, देन एंगल आ रहा है, इसके लिए एस ए ए सीक्वेंस देखने का कभी भी, पहले साइड आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन एस ए ए नॉट ए एस से। गॉट इट? चलो यहां तक क्लियर है आपका भी। अब देखो जब कॉन्ग्रुएंट रहता है ट्रायंगल, हम क्या करते हैं गाइस, व्हाट वी डू, व्हाट वी सपोज टू डू whenever the triangles are congruent, whenever the triangles are congruent, what we supposed to do? Yes, exactly, we will do our मनमानी, हम लोग मनमानी करेंगे, किसी को भी इक्वल बोल देंगे, किसी को भी एंगल को भी इक्वल बोल देंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मनमानी, देखो अच्छे से, सी हियर व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डायरेक्टली सेइंग BF इक्वल टू CS। देखो यहाँ पर कैसे आया, सी हियर ऑल ऑफ यू, मुझे ये निकालना था ना BF इक्वल टू CS, मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ ना अभी, यस और नो गाइस, समझ रहे हो? तो मैं डायरेक्टली, ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो डायरेक्टली आई विल राइट BF इज कॉन्ग्रुएंट टू CF। मतलब वही हो गया, देखो ये ED क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है BC को, BF CF का मतलब क्या हो गया, ED बाइसेक्ट CF, बी ED बाइसेक्ट BC। ध्यान दो अब यहाँ पे, व्हाट आई हैव रिटन BF इक्वल टू CF, इधर लिखने का आपको, मैं लिखा नहीं हूँ, corresponding sides of congruent triangle, that means CSCT, you have to write on your own, ये बेसिक्स है, ठीक है? लास्ट में लिखेंगे हम लोग AD बाइसेक्ट BC एट पॉइंट F। सिंपल है गाइस, सो बेटर टेक द स्क्रीनशॉट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था अपने को, वो हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो, फर्स्ट व्हाट दे हैव गिवन, ABCD is a parallelogram, yes it is given already, so AB parallel to DC obviously, अगर parallelogram है तो मैंने क्या बताया, opposite side will remain parallel, तो हमने क्या डिस्कस किया, AB parallel to DC है। देखो ये B है, मिस्टेक हुआ है थोड़ा, इसको याद रखो, मैं बार बार लिख रहा हूँ, देखो याद ध्यान से देखो यहाँ पर, अभी AB parallel to DC लिया मैंने, AB को गाइस आई कैन राइट AP, AB को मैं AP लिख सकता हूँ बिकॉज एक ही लाइन में आ रहा है, वैसे ही DC को आई कैन राइट, DC को आई कैन राइट CQ। एग्री कर रहे हो कि नहीं मेरे से? ध्यान दो अच्छे से, AB को आई कैन राइट AP एंड DC को आई कैन राइट CQ बिकॉज एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, सिंपल है। अभी ध्यान दो अच्छे से, AB इज इक्वल टू CD ऑल्सो, देखो AB जो है वही CD भी होगा। सर वाई? बिकॉज मैंने बोला अगर वो पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड विल गेट पैरेलल ऑल्सो, ऑपोजिट साइड इज कॉन्ग्रुएंट ऑल्सो, तो पहला पैरेलल लिया, अभी कॉन्ग्रुएंट लूंगा, AB इज इक्वल टू CD। अब व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मल्टीप्लाइंग बाय हाफ, देखो हाफ AB हाफ CD, आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ। अभी ध्यान दो अच्छे से, हाफ AB का मतलब क्या हुआ, ये AB का मतलब होता है AP, हाफ AB का मतलब ही होता है AP। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, बिकॉज P आपका मिड पॉइंट है, P आपका क्या है, मिड पॉइंट है, तो जो मिड पॉइंट का साइड होता है ना वो आधा होता है बड़े वाले साइड का, इसको दिमाग में रखो, इसको हम लोग ने पहले भी कर चुके हैं, इस सम्स को हम लोग पहले भी कर चुके हैं बहुत बार। अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो यहाँ पर अभी ये जो हाफ AB है ना उसको हम लोग क्या लिखेंगे, AP लिखेंगे बिकॉज मिड पॉइंट है। सिमिलरली मुझे बताओ हाफ CD को क्या लिखोगे, हाफ CD को क्या लिखोगे आप, सच्ची बताओ फास्ट, हाफ CD को, यस यू विल राइट CQ, हाफ CD को क्या लिखोगे आप, CQ। देखो CQ इक्वल है ना, ये Q मिड पॉइंट है, तो हाफ CD को आप क्या लिखोगे, CQ। देखो अब यहाँ पे ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, हाफ AB इक्वल टू हाफ CD, तो हाफ AB को वी कैन राइट, हाफ AB को वी कैन राइट AP and half CD को we can write CQ. So we got AP is congruent to CQ. हमको क्या मिला, AP is congruent to CQ। अभी ध्यान दो अच्छे से, AP congruent to CQ मुझे मिला। अब ध्यान दो, मैं छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूँ, तो ये क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूँ, अंदर वाला ये वाला APCQ दिख रहा है आपको, ये क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूँ मैं, इसमें मुझे मिला AP is congruent to CQ, ये मुझे मिला है। एंड आई नो डैट कि जब भी ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो क्या होगा भाई, ये पैरेललोग्राम होगा। ध्यान दो बच्चों, इन APCQ AP पैरेलल टू CQ, इससे पहले हम लोग ने देखे AP पैरेलल है CQ को और AP कॉन्ग्रुएंट भी है CQ को। मैंने क्या बताया दोस्त, सच्ची बताओ, when in a quadrilateral if opposite side are congruent
एज वेल एज ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे वो क्वाड्रिलैटरल क्या है, वो क्वाड्रिलैटरल है आपका पैरेललोग्राम। अगर कोई भी ऑपोजिट एक क्वाड्रिलैटरल हो, उसको ऑपोजिट साइड पैरेलल भी आ रहा है, उसको ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट भी आ रहा है, आप डायरेक्टली क्या बोलोगे कि क्वाड्रिलैटरल क्या है, कि पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पर लिखा है, अब क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, मैंने लिखाया था 4 पॉइंट्स। इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे एपीसीक्यू क्या है, ये है आपका पैरेललोग्राम। बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है गाइस, काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। अंडरस्टूड? इट इज गिवन इट इज अ रेक्टेंगल एंड वी हैव टू प्रूव इट इज आल्सो पैरेललोग्राम। देखो अभी कैसे करेंगे हम, देखो स्क्रीनशॉट। What is given? It is given that it is a rectangle. ABCD is what? It is a rectangle. So I have written ABCD is a rectangle. What we have to prove? We have to prove that it is a parallelogram. Given क्या दिया है? Given क्या दिया? ABCD rectangle है, वो given में आ गया, और हमको प्रूफ क्या करना है? Quadrilateral ABCD is a parallelogram, हमको प्रूफ करना है। Now see हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। What is given guys? सच्ची बताओ, quadrilateral rectangle दिया है हम लोगों को, तो स्टार्ट में वही से कर रहा हूँ। Quadrilateral ABCD is a rectangle. So if the ABCD is a rectangle, we know that all angles of rectangle is 90 degree. Agree with me? All angles of rectangle is 90 degree. So I have written angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to angle D. ये क्या है आपका? इक्वल टू 90 डिग्री। अब ध्यान दो, मैं ऑपोजिट एंगल को ले रहा हूं, ध्यान दो, अभी ध्यान दो। एंगल ए एंड एंगल सी देखो दोनों 90 है, तो आई कैन सी दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। चारों एंगल 90 एक्चुअली में देखा गया, तो बट मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है ना, तो आई कैन से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। सिमिलरली आई कैन से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, बिकॉज चारों 90 है गाइस, तो एंगल ए और सी को हम इक्वल लेंगे, एंगल बी और डी को इक्वल लेंगे। नॉट टेल मी ऑल ऑफ यू, एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉन्ग्रुएंट, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस एंगल? एंगल ए और एंगल सी का क्या रिलेशन है? दे आर दी ऑपोजिट एंगल्स। अंडरस्टूड? दे आर दी ऑपोजिट एंगल्स। तो मुझे क्या मिला? ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर मेरा ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा, अगर मेरा ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा, क्वाड्रिलैटरल क्या रहेगा? क्वाड्रिलैटरल क्या रहेगा? यस, वो रहेगा आपका पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखूंगा, a quadrilateral is a parallelogram if its opposite angles are congruent. So we have proved ABCD parallelogram है। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। Figure is already given. What is given? G is the point of concurrence of median. अब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या समझो अच्छे से। देखो अगर एक ट्रायंगल है, मैंने यहाँ से एक मीडियन बनाया, यहाँ से एक मीडियन बनाया और यहाँ से एक मीडियन बनाया, तो अगर तीनों मीडियन एक पॉइंट पे टच करते हैं, उसको हम लोग जी बोलते हैं। उसी को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और इसी का और एक नाम है सेंट्रॉइड। वो आपको दिया नहीं है बुक में, बट इसका और एक नाम क्या है? सेंट्रॉइड। याद रखो, व्हेनेवर इन अ ट्रायंगल, तीन एंगल है, तीन एंगल है मतलब तीन मीडियन बनेगा आपका, तो तीनों मीडियन अगर एक ही पॉइंट पे टकरा रहे, दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट, सो दैट इज नोन एज व्हाट? यस, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, as well as that is known as point of concurrence centroid. Understood? Again I am repeating guys, focus all of you. Whenever triangle is given, it is a concept, it's not in the textbook. Textbook में नहीं दिया ये guys, it is a concept, so kindly note it down. Whenever a one median we have drawn, another median we have drawn, and another median we have drawn, obviously if a triangle having three angles, if क्या एक triangle में तीन angles ही होते हैं, yes or no students? So if a triangle having three angles, then we can draw three medians, we can draw three medians, and whenever these three medians are intersecting at a single point, it is denoted by G, capital G, so we will call it as it is a centroid, or we will call it as point of concurrence, we will call it as point of concurrence. यहाँ तक समझ में बढ़िया है? चलो आ जाओ इधर अभी, all of you focus here. And what is given in the figure? DG is equals to GS. DG, that means this is equal to GH. It is already given. And what we have to find? We have to find out GEHF. We have to find out what? GEHF.
दिस इज अ पैरेललोग्राम, यू हैव टू प्रूव GHF। पहली बात बता देता हूं मैं, GHF किधर है, ये GHF है, देखो दिस फिगर, दिस एंटायर फिगर इज GEHF। अंडरस्टूड बच्चे लोग? यस और नो? यस, आई एम गेटिंग इन द चैट बॉक्स, यस और नो। एक एक स्टेप में समझना है हम लोग को, एक भी स्टेप में दिक्कत आ जाएगा, प्रॉब्लम आ रहा है, यू कैन डायरेक्टली आस्क। ओके, चलो आगे आ जाते हैं। चलो अभी हम लोग सम्स को अप्रोच करते हैं। व्हाट आर द सम, व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव, आई हैव टोल्ड यू। नाउ वी विल अप्रोच दिस सम, हाउ टू स्टार्ट विद द सम। फोकस हियर ऑल ऑफ यू, विल स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट द मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स D इंटरसेक्ट EF एट पॉइंट M। ओके, जो मीडियन बना है ना, ये जो मीडियन बना है, ये M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है EF को। Whenever we are drawing a median, we have to tell a name, a point we have to suggest. So I am suggesting what? It is a M, point M. Okay, now we are moving to the next part now. So G is the centroid. I told you in the start of the lecture only कि G को हम लोग क्या बोलते हैं, point of concurrence भी बोलते हैं, as well as we will call it as what? Centroid. Okay, so we are moving that centroid. What is the centroid basically? See here all of you. Again I am explaining one concept. Let us assume this is a A, B, C, and let us assume AD is a median. AD क्या है आपका? It is a median, right? So we are getting here point G is a centroid. अब पूछो मत G क्या है? I have already told you G means what guys? G means centroid. जब तीन मीडियन एक साथ टकराते हैं तो जो पॉइंट पे टकराते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। ओके, नाउ G is the centroid. Focus here all of you. बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करने वाले मैथमेटिक्स का हम लोग, देखो ध्यान से। G we got centroid, so AD is a median. AD क्या है आपका? Median. Now see here carefully all of you carefully listen here. अब ये जो मीडियन था AD, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया बेसिकली। द पार्ट इज AG अपॉन GD। अब तक सेंट्रॉइड नहीं था तो हम लोग उसको AD बोलते थे। ओके, whenever the centroid arises, so we will call it as AG upon GD। वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसका सॉरी, अब इसका रेशियो क्या रहेगा? What will be the value AG upon GD? So it will be always 2/1. It will be always 2/1। जब हम लोग ने इसको प्रैक्टिकली चेक करे, मैं ऐसे थियोरेटिकली नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिकल डिस्कस करना अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। Whenever we will get extra time, so I will explain you ये 2/1 क्यों होता है, ये 2/1 ही क्यों होता है, 3/1 क्यों नहीं होता है, इसके पीछे भी लॉजिक है मैथ्स में। मैथ्स में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि समझ लो, ऐसा नहीं है। वी आर हैविंग विद द प्रूफ, वी आर डन विद द प्रूफ। ओके, सो अभी हमारे पास उतना प्रूफ को टाइम नहीं, बिकॉज़ सिलेबस में नहीं है आपका। जब एक्स्ट्रा टाइम को मिलेगा तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। फोकस हियर। सो व्हेनेवर द मीडियन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द रेशियो विल बी ऑलवेज 2/1। अंडरस्टूड टिल हियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, एडी अकेला था अभी तक, लेकिन जब उसके पास सेंट्रॉइड आता है गाइस, सो द मीडियन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। AD will divide into AG upon GD and the ratio will be always 2/1. Understood till here? चलो अभी सम पे आ जाओ। So centroid basically divide what? 2:1. So what you will get here? What is the divide part? DG and GM. Yes or no? So DG upon GM you got, DG is to GM is 2/1. That means 2:1 basically. चलो आगे आ जाओ। DG is to GM को we can write DG upon GM. As we are aware कि जब हमको 2 में दिया रहेगा तो हम उसको रेशियो में निकालते हैं। Similarly, in the same fashion, 2:1 we can write 2/1. Okay, next part. So what you will get? एक स्टेप देखो ऐसा आएगा यहाँ पर, DG upon GM is equals to, it is written 2/1. So basically do cross multiply. Basically do what? Cross multiply. Cross multiply करो, क्या आएगा? DG 1s are DG. Similarly, 2 into GM is 2GM. So this is how the equation comes. This is how the equations come, right? So you have taken here DG equals to 2GM, equation number 1. Now next slide. Focus here all of you. Very important part, guys. DG equal to GH. हमने स्टार्टिंग में देख लिया, they have already given DG equal to GH. So what will be the part? DG means what? GH. देखो यहाँ पर GH को how we can write? See the figure. See here. GH is this. This is GH. This is GH. So GH को we can write, break it, GM plus MH. Yes or no guys? Simple है guys. कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं आना चाहिए यहाँ पर आपको। बहुत सिंपल कंसेप्ट है आपका, बहुत ज्यादा ही सिंपल कंसेप्ट है। देखो GH को we can write GM plus MH. Yes or no? Agree with me? बिकॉज एक ही लाइन में आ रहा है तो टुकड़ा कर सकते हैं हम लोग।
और आपका ध्यान दो यहाँ पर अभी देखो dg इक्वल टू जी एच पे लिखेंगे हम लोग जीएम प्लस एम एच, ध्यान दो अब अच्छे से। बट व्हाट इज डीजी? डीजी तो हमारा 2gm है, यस और नो बच्चे लोग? डीजी क्या है? 2gm, अभी तो निकाले आपने। तो डीजी कितना है हमारा? 2gm। तो जीएम प्लस एम एच एज इट इज। तो जीएम को इधर फेंक दो लेफ्ट साइड में, तो 2gm माइनस जीएम हो जाएगा आपका, 2gm माइनस जीएम हो जाएगा आपका इक्वल टू एमएच हो जाएगा। तो 2gm माइनस जीएम कितना होएगा? इट इज जीएम। तो वी गॉट जीएम इक्वल्स टू एमएच, जीएच इक्वल टू जीएच नहीं बाबा, जीएम इक्वल टू एमएच हो जाएगा। देखो भाई 2gm माइनस जीएम जीएम हो गया इक्वल टू एमएच, तो जीएम इक्वल टू क्या होगा हमारा? एमएच होगा। इक्वेशन नंबर 2। आ जाओ इधर अभी नेक्स्ट स्टेप। इन जीएचएफ ध्यान दो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। सम हो गया हमारा, हमको क्या क्या मिला देख लो एक बार, पहला क्या क्या मिला देख लो हमको। हमको इधर अभी मिला जीएम इक्वल टू एमएच मिला, जीएम इक्वल टू एमएच मिला। अभी हम लोग ये पूरा कोऑर्डिनेटर ले रहे हैं, जीएचएफ ले रहे हैं, ध्यान दो अच्छे से। देखो हमको इधर कोऑर्डिनेटर में क्या मिलेगा? इन जीएचएफ ध्यान दो अच्छे से, ईएम इक्वल टू एमएच मिलेगा। एग्री कर रहे हो? ईएम इक्वल टू एमएच, ध्यान दो कैसे आया बताता हूं आपको। देखो मैं ईएम इक्वल टू एमएच देखो कैसा है, इसके पीछे राज है, राज। ईएम इक्वल टू एमएच देखो कैसा है, राज है राज। देखो दिख रहा है आपको ये फिगर? मैंने क्या बोला आपको? ये मिड पॉइंट है, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होएगा ना। अगर ये मिड पॉइंट है, मीडियन है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड होएगा। तो हमको मिला ईएम इज कॉन्ग्रुएंट टू एमएफ एज वेल एज जीएम और एमएस। तो अभी आपने इक्वल प्रूफ करे, मतलब एक कोऑर्डिनेटर में देख लो डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहा है, ध्यान दो यहाँ पर फिगर देखो ऐसा हो रहा है, जी ई एच एफ और ये एम, ईएम इक्वल टू एमएफ हमको मालूम है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहा है। अगर डायगोनल बाइसेक्ट होगा, अगर डायगोनल बाइसेक्ट होगा तो क्या होगा? कोऑर्डिनेटर क्या होगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। देखो यहाँ पर पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर सिंपली सी ईएम एमएच इक्वल है। देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर से पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या हो रहे हैं आपके? बाइसेक्ट हो रहे हैं। डायगोनल्स क्या हो रहे हैं आपके? बाइसेक्ट हो रहे हैं। हमको वही तो प्रूफ करना था भाई, हमको वही तो प्रूफ करना था सिंपली। यस और नो? यस और नो बच्चे लोग जल्दी बोलो, 5 मिनट बचे हैं। ओके काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो।